Good morning, my dear students of class 12th. I hope you understood the previous topic. Now, students, today I am going to start a next topic of this chapter. We'll proceed the next topic, birth control or contraceptive methods. It is an overview of contraception or birth control. Many couples, they generally misconception about the birth control or contraception. It means to only prevent population or to control the population. It is wrong, because if any couples or partner, they are generally using many different methods, so it doesn't mean to only prevent the population. It also help to prevent pregnancy. It also help to delay the pregnancy if couple wanted to delay the pregnancy. And the last, if first child is born, and they want to a gap between a second child, so it is also a best method. So this is categorized into two categories: temporary and permanent. Temporary means if any couple, they want to again conceive it, so these are the process reversible. And permanent, if couple wanted to conceive it, but again that will not be reversible. An ideal contraceptive should be eco-friendly, easily available, biodegradable, cheap and best, not for high cost, reversible. वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया. नो और लेस साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि दीज आर अ स्पेशल फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. But this contraception can used by both male and female. It means these contraception is used by these, matlab mostly barrier method is used by male. Otherwise the IUD's chemical implant is used by a female partner. स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ. साइड इफ़ेक्ट जो आएगा दैट इज़ ओनली फाउंड इन फीमेल. नोजिया, ओकाई आना, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन होना, इरेगुलर मेंसेस, द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली साइकिल है वो डिले होना या एडवांस हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर. ये अल्टीमेटली ये कब की स्टेज है? व्हेन एनी कपल पार्टनर दे आर यूजिंग habitually means continuously they are using it. So these are the side effects of the contraceptives. Students, the first method of temporary method is नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड होगा तो वो पूरी तरह से सेफ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो होंगी हमारे ऊपर डिपेंड करेंगी. इट मीन्स कपल पार्टनर्स के ऊपर, यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करेंगी. तो इट कुड नॉट बी 100% सेफ मेथड. सो द फर्स्ट मेथड इज़ नेचुरल मेथड. में नेचुरल का मतलब द पार्टनर्स, दे आर नॉट यूजिंग एनी बैरियर्स, एनी IUDs, chemicals. Naturally a safe period, but it could not be 100% safe period. That's why I have written unsafe period. तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस. पीरियोडिक, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? पीरियड्स की. एंड एब्सटिनेंस का मतलब अभी मैं बता रही हूँ क्या होता है. एब्सटिनेंस ऑब्वियस सी बात है, एब्सेंस. बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कपल्स हैं, द पार्टनर्स हैं, वो मोस्टली क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. Suppose if any woman have menstrual cycle 7 days, so after 7 days, after 7 days का मतलब if they completed menstruation, now the first day start after completion up to 7 days is a safe period. But 10 to 17 days of a month is not safe period, because on that duration is a ovulation occur. It means the releasement of the egg occur. So if releasement of the egg occur and couple they coitus during that ovulation, so the chances will be not safe, it will be unsafe. So periodic abstinence, ये हम कौन याद रखेंगे? कपल्स याद कर सकते हैं. इट मीन्स फीमेल्स पार्टनर मोस्टली.
कि मेंसेस कब से स्टार्ट है कब ख़त्म हो रहा है, तो उसके 1 मंथ के मिड में ओव्यूलेशन होगा, तो दे कैन अवॉइड ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ नेक्स्ट सेकंड वन इज क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल. विड्रॉल का मतलब हो रहा है इफ सपोज एनी मेल पार्टनर दे release out the semen not inside the vagina of the female but outside. So coitus interrupts us. It means during coitus, if semen is releasing, so before releasing the semen, they generally ejaculate that semen outside the environment. So that is called coitus interrupts us. And the third one, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ये पार्टनर्स कपल्स के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए नेचुरल मेथड है. द लास्ट थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिन्यूरिया. लैक्टेशनल का मतलब व्हेन अ वुमेन इज इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग. सो एमिन्यूरिया का मतलब होता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक्ड. जब तक वो मदर लैक्टेशन कर रही है तब तक आपको पता है कि क्या नहीं होंगे, मेंसेस नहीं आएंगे. और इफ़ पार्टनर्स आर डूइंग क्वाइटस ड्यूरिंग दैट कंडीशन, सो इट कुड बी अ सेफ पीरियड, बट अगेन इट इज़ नॉट 100% सेफ पीरियड लैक्टेशनल. लेकिन ये कब तक होगा, अप टू 4 to 5 मंथ, जब तक वो इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में है. नाउ सेकेंड, बैरियर मेथड. अब बैरियर का मतलब ही होता है किसी चीज़ रुकावट. तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है. बैरियर मेथड में मोस्टली ज़्यादातर इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को अंदर आने से रोके, इन अ नॉर्मल लैंग्वेज. बट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, क्योंकि कॉपुलेशन होगा, क्वाइटस होगा बिटवीन अ पार्टनर, so semen will ejaculate inside the vagina, and if ovulation is occur during that, so 100% chances of conceiving occur. Now, so barrier method, if male partner that is the sign of male, it means barrier method में male जो mostly use करते हैं condoms use करते हैं, and that condoms is made up of latex, रबड़ के सब्सटेंस होता है, उससे मिलकर बना होता है. एंड वन थिंग, इट इज़ बेटर बिकॉज कंडोम्स आर इको फ्रेंडली. कंडोम्स इज ऑल्सो यूज्ड बाय फीमेल एंड दैट इज कॉल्ड फेमिडोम्स. सो इट इज़ इको फ्रेंडली, बट इफ एनी पार्टनर दे आर यूजिंग इट, सो it's a privacy to the users to thrown out it. And मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मेल पार्टनर हैं उनसे एक फ़ायदा ये होगा, इफ़ दे आर यूजिंग कंडोम्स, सो द सीमेन कुड नॉट इंटर द वेजाइना ऑफ द फीमेल. एंड वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, एंड सेकेंड इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्टिंग मैनी एसटीडीज़. एसटीडीज़ का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है फ्रॉम मेल पार्टनर टू फीमेल, फीमेल पार्टनर टू मेल, किसी से भी हो सकती है, तो उसको भी प्रिवेंट कर रहा है. इट मीन्स कंडोम्स हेल्प टू प्रिवेंट मैनी एसटीडीज़, और उनमें से कौन सी एक है, एड्स. इसीलिए बेस्ट यूज़ किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कंडोम्स यूज़ जो करें वो मेल्स करें. क्यों? बिकॉज इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा. नाउ फीमेल का अगर बैरियर मेथड यूज़ बात करें तो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, दीज आर द बैरियर्स विच इज़ यूज्ड बाय अ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन और बिफोर द कॉपुलेशन. होने से पहले दीज आर अटैच्ड इनसाइड द वेजाइना, ताकि क्या ना हो, एंट्री ऑफ द सीमेन विल बी हैप्पीज़ेड. सो बिफोर copulation, some spermicidal creams, jelly foams, these are used by a vaginal areas. So it will help to phagocytose the sperm, or entry of the sperm will be blocked, because these chemicals can destroy the upcoming semen or sperms. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेचुरल मेथड.
Natural method, barrier method, condoms used by male, and these are the barrier method used by a female. Femidomes, it is also a type of condoms before copulation से पहले these are used, that's why the entry of the semen will be haphazard. Now नेक्स्ट जो है वो है IUDs, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि यहाँ तीनों की जो बात की जा रही है वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फीमेल यूज़ कर रही हैं. सो IUDs का मतलब ये होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि सम डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय अ फीमेल टू इंसर्ट इनसाइड द यूटरस ऑफ द फीमेल्स बॉडी. फर्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ वन नॉन मेडिकेटेड IUDs. नॉन मेडिकेटेड का मतलब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मेडिकेटेड कोई मतलब यहाँ पर कोई हार्मोनल या कॉपर से रिलेटेड नहीं है, या मेडिसिनल ज़्यादा यूज़ नहीं. लिप्स लूप, एक तरह से लूप्स होती है, उसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, लिप्स लूप होती है. इसीलिए इंट्रा यूटेरिन का मतलब ये होता है कि डिवाइसेस हैं जिसको फीमेल किसी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के थ्रू यूज़ कर रहा है, यूट्रस में इंसर्ट कराया जा रहा है. सेकंड, कॉपर आयंस रिलीजिंग, यानी कि अब कॉपर ऐसी IUD जो कॉपर आयंस को रिलीज़ करेगी, और वो होती है कॉपर T एंड कॉपर 7. स्टूडेंट ये ऐसी होती है कॉपर T, जस्ट लाइक कॉपर T. क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ 3 कॉपर आयंस रिलीजिंग IUDs, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. व्हाट एक्चुअली कॉपर आयन रिलीजिंग डू, यानी कि ये डिवाइसेस IUDs करती क्या हैं, मोस्टली कॉपर आयंस की बात कर रहे हैं. कॉपर T जनरली इंसर्टेड इन बिटवीन द ओविडक्ट, यानी कि यूट्रस में T शेप होती है. T का मतलब ही हुआ T शेप्ड. अब इससे फ़ायदा क्या है, इट रिलीजेस कॉपर्स आयन, and if ejaculation occur the semen in which the sperms are present, generally these copper ions phagocytose the sperm, यानी कि they help to prevent the mobility of the sperm. मोबिलिटी ही ख़त्म हो गई तो स्पर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि कॉपर आयन phagocytose the tail region, and if tail is not active, so the head portion will not be moved towards the fallopian tube. नेक्स्ट है हार्मोनल. अब जो है यानी कि अब बात की जा रही है जिसमें हार्मोन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि मोस्टली फीमेल की बॉडी में कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनाई गई है यानी कि मेडिकेटेड है वो है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोट, PROGESTASERT. तो ये क्या है, IUDs हैं 3 कैटेगरीज की. नॉन मेडिकेटेड, कोई भी मेडिकल नहीं, ना हार्मोन ना कॉपर, लिप्स लूप. सेकेंड कॉपर आयंस रिलीजिंग है, एंड थर्ड हार्मोनल रिलीजिंग है.